Good morning to all of you. I'm Rajesh Kumar, science teacher of KLM International School, Pathankot. Our main chapter is life process of class 10th biology. In this particular lecture, we will discuss about transportation in human being, blood, types of blood vessels. Okay. First of all, transportation. What do you mean by transportation? Transportation means transporting of material from one place to another place. Okay. Transportation means transporting various nutrients, hormones, enzymes, energy contents from one part of the body to the other part of the body. And the main transporting medium is blood. Okay. Blood is actually the main transporting medium. Okay. Blood transport oxygen and various other waste product also from the body, from the part of the body to the part of elimination, means kidney. Okay, because kidney can form urine, and through urine there are a number of waste products can be removed from the body. Okay. Blood is actually a mixture. Blood is actually a matrix which contain basically two part. One is cellular part and second one is plasma. Cellular parts contain RBC, WBC, platelets. Okay, RBC basically perform the function of exchange of oxygen. WBC perform the function in defense system, and platelets perform the function of blood clotting. Okay, and then second one is plasma. Plasma consists of plasma proteins, the proteins which maintain the viscosity of blood. Okay, these plasma proteins can maintain the viscosity of blood. And the second one is that serum basically contain antibody. uh, uh, in plasma, if we remove protein, then only serum left. Okay, the serum actually contain antibodies. Okay, so this is all about the blood is basically red in color because of the presence of hemoglobin. Hemoglobin is a iron containing pigment which basically transport oxygen, and some percentage of carbon dioxide is also transported by hemoglobin. Okay, वाई ब्लड हैविंग रेड कलर? देखो ब्लड का कलर रेड क्यों होता है? बिकॉज वी नो दैट ब्लड हैविंग आयरन, और जब आयरन की रिएक्शन ऑक्सीजन से होती है, दीज रिएक्शंस आर एक्चुअली एन एग्जांपल्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ये रिएक्शन जो है ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, और इसी ऑक्सीडेशन रिएक्शन की वजह से जो ब्लड का कलर है बेसिकली वो रेड और ब्राउनिश कलर का होता है. ओके, बट वट हैपन व्हेन द आयरन रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड? देखो जब आयरन कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करती है तो रेड कलर नहीं आता है, ब्राउन कलर वो नहीं आता है. ठीक है, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिएक्शन वहाँ पे नहीं होती है. ओके, ड्यू टू दिस रीजन ब्लड इज रेड इन कलर एक्चुअली. Okay, then second is blood vessels. What are the blood vessels? Blood vessels क्या होते हैं? Blood vessels are the vessels which basically transport the blood, which basically carry the blood. Okay, these are mainly of two type: artery and vein. Capillary is actually not part of blood vessel. They can be considered under blood vessel but not actually a blood vessel, because कैपिलरी इज़ वेरी स्मॉल इन साइज़. कैपिलरी का जो साइज़ है बहुत छोटा होता है, बहुत फाइन साइज़ होता है, और ब्लड को ये स्पेशली आरबीसी को ये कैरी नहीं कर सकती, बिकॉज आरबीसी का जो फुल फॉर्म है वो है रेड ब्लड कार्पसेल्स और सेल. जो आरबीसी का साइज़ है वो बड़ा होता है कैपिलरी से, और कैपिलरी का साइज़ जो बहुत छोटा होता है, बहुत स्मॉल साइज़ होती है कैपिलरी. कैपिलरी ओनली ट्रांसपोर्ट और एक्ट एज अ एक्सचेंज मटेरियल, एक्ट एज अ एक्सचेंजिंग पार्ट between the blood particles, or between the components which is present in the blood and the cell. Okay, और सेल के बीच में और वेन और आर्टरी के बीच में जो कनेक्शन होता है वो कनेक्शन बेसिकली होता है कैपिलरीज का. ओके, कैपिलरी उनको एक्सचेंज करवाती है. दो मेन डिफरेंस देख लेते हैं आर्टरी और वेन में. आर्टरी का जो वॉल होती है थिक होती है, आर्टरी की जो वॉल थिक होती है, वेन की वॉल जो है थिन होती है. ठीक है. सेकेंड, आर्टरीज जो होती हैं, आर्टरीज ऑलवेज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट पल्मोनरी आर्टरी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ओके, veins always carry deoxygenated blood, but pulmonary veins carry oxygenated blood. This is an exceptional case. Okay, second, next, arteries does not having valves. आर्टरी के अंदर valves नहीं लगे होते हैं. valves means ऐसे स्ट्रक्चर जो कि फ्लो को कंट्रोल करते हैं, जो ब्लड का जो फ्लो है बेसिकली उसको कंट्रोल करते हैं. तो आर्टरी के अंदर valves नहीं लगे होते हैं. इसी वजह से आर्टरी का जो प्रेशर है वो ज़्यादा होता है, लेकिन वेन का जो प्रेशर है वो कम होता है. वाई? बिकॉज वॉल्व्स आर प्रेजेंट इनसाइड द वेन, और वो जो वॉल्व्स होते हैं वो फ्लो को कंट्रोल करते हैं. ओके, देन नेक्स्ट इज capillary. Capillary I already discussed with you. A capillary actually work as a exchange between the exchange of nutrients from the cell to the artery or vein, from artery or vein to the cell. ओके, आर्ट वे कैपिलरी हैविंग नंबर ऑफ पोर्स. कैपिलरी की जो वॉल होती है उस पर नंबर ऑफ पोर प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि कैपिलरी का जो मेन काम है वो है एक्सचेंज करना. ठीक है, तो उसी वजह से कैपिलरी में का प्रेशर बहुत कम होता है. ठीक है,
Capillaries are very fine narrow blood vessels which connect artery and vein together. The exchange of food, water, oxygen, carbon dioxide between the blood and the cell takes place through the capillaries. Okay, so this is all about the blood vessels. Then heart. Human heart is actually myogenic in nature. Myogenic means basically made up of muscles, muscular regions, which basically pump the blood, जो blood को pump करता है to the various body part. Okay, हमारा जो heart है, human heart है, 4 chambered heart है, upper 2 chamber को auricle बोलते हैं, नीचे 2 chamber जो है उनको ventricle बोलते हैं. ऑरिकल के बीच में एक कनेक्शन होता है या एक सेपरेशन लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं इंट्राऑलिकुलर सेप्टम. उसी तरह वेंट्रिकल, दो जो वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल उनके बीच में भी एक सेप्टम होता है जिसको हम इंट्रा वेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं. ऑरिकल ऑफ राइट साइड एंड वेंट्रिकल ऑफ राइट साइड आल्सो सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय ए कनेक्शन और बाय ए सेपरेशन लेयर नोन एज इंटर ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम. इंटर ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम. ओके, राइट साइड और लेफ्ट साइड सेम इस तरह से सेप्टम डिविजन्स होती है. ठीक है. वेंट्रिकल्स की जो वॉल होती है थिक होती है. आई ऑलरेडी डिस्कस की थी. वेंट्रिकल्स हैविंग थिक वॉल. व्हाई वेंट्रिकल्स हैविंग थिक वॉल? बिकॉज वेंट्रिकल पंप द ब्लड. आउट ऑफ दीज टू वेंट्रिकल, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल हैविंग मोर थिक वॉल बिकॉज लेफ्ट वेंट्रिकल पंप द ब्लड टुवर्ड द बॉडी. ठीक है, वो पूरी बॉडी की तरफ ब्लड को पंप करता है लेफ्ट वेंट्रिकल. और जो राइट वेंट्रिकल होता है उसकी वॉल थिक होती है बट लेफ्ट वेंट्रिकल कंपेयर में कम थिक होती है क्योंकि जो राइट वेंट्रिकल है इट ओनली पंप द ब्लड टुवर्ड द लंग्स. वो सिर्फ ऑक्सीजनेशन के लिए ब्लड को पंप करता है लंग्स की तरफ. ओके, अब देयर आर सम वॉल्व्स आर प्रेजेंट इन द हार्ट. ये देखो हार्ट की डायग्राम आपको दिख रही होगी. देखो ऑरिकल और वेंट्रिकल, राइट साइड की बात कर रहा हूँ. राइट साइड ये आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, राइट साइड और लेफ्ट साइड. राइट साइड का जो ऑरिकल है, ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व होता है जिसको हम बोलते हैं ट्राइकॉस्पिड वॉल्व. ये जो ट्राइकॉस्पिड वॉल्व है ये ये प्रिवेंट करता है बैक फ्लो ऑफ द ब्लड. ओके, एंड देन द ब्लड फ्रॉम द वेंट्रिकल मूव्स टुवर्ड द पल्मोनरी सर्कुलेशन. ओके, देखो सबसे पहले ब्लड कहाँ से कहाँ, जो ब्लड है सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा से आता है और वो राइट ऑरिकल में आता है और राइट ऑरिकल से वो राइट वेंट्रिकल में जाता है. ओके, तो यहाँ पे जो कनेक्शन होता है, यहाँ पे जो एक वॉल्व्स होता है, जो वॉल्व इस ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है कहाँ से कहाँ, जो राइट वेंट्रिकल है वहाँ से वापस राइट ऑरिकल में ना जाए. वो जो वॉल्व होते हैं उनका नाम है ट्राइकॉस्पिड वॉल्व. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स. मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो. जो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. ओके, स्टिल देन स्टे सेफ, स्टे एट होम. थैंक यू.